indicated clearly that the root cause of the need for H-1B visa workers has been the shortage of skilled workers in the US, and that's a gap which is filled by the H-1B workers. And finally, we have always also maintained that measures to protect American workers will not be successful if they are applied selectively in such a manner that only a small number of companies get impacted, and these companies are typically the Indian companies which account for only 20% of the visas. Therefore, that such measures which are intended to protect American workers to be effective should actually be applicable to all the companies. As far as the present executive order is concerned, I think it does initiate a process of review, which is certainly desirable, and it does also signify a more thoughtful process and a more thoughtful approach to the issue, something which Prime Minister Mr. Modi had also mentioned to the visiting congressional delegation, saying that a more thoughtful and far-sighted approach was desirable, and a process which has been initiated now, in which consultations would take place, would hopefully take into account all of these inputs with regard to implications for job creation in the US and the need to more fully protect American workers by making all such measures applicable across the board. It's also, I think, been recognized that the immigrant workers play a huge role in the innovation in the US, and in fact one of the sponsors of one of the bills that is there in Congress had also pointed out that more than 50% of startups in the US are promoted and founded by immigrant workers, by immigrants, and it may also be mentioned that more than 80% of the startups do have an Indian immigrant or an Indian origin person among the sponsors. So the other dimension of the changes is that we believe that the innovation ecosystem in the US should be maintained, and whatever changes are brought about should ensure that this is conducive to the innovation ecosystem in India. चलिए, तो आप नेस्कॉम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए हैं। H-1B वीजा नियमों को लेकर बदलाव होंगे। घरेलू इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए अमेरिकी सरकार अब काम कर रही है, और असर वो इंडियन आईटी पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा क्योंकि एक्सपोजर यूएस मार्केट्स पे इंडियन आईटी सेक्टर का बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी देर पहले कमोडिटी मार्केट में बात कर रहे थे। ग्रांड शेखर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संगी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन 10 पॉइंट्स की गिरावट इसमें निफ्टी पे देखने को मिल रही है और सेंसेक्स 26 अंक नीचे है। निचले सुरों से जो पुल बैक शो हुआ है उसमें तेज है टाटा पावर, इंडेक्स का सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है आज, 1.5% ऊपर। पावर ग्रिड, एनटीपीसी यानी कि 3 स्टॉक्स पावर क्षेत्र के जो आज बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सन फार्मा में 1% के आसपास की तेजी बनी है। आईटी पैक भी रिवाइवल शो कर रहे हैं निचले सुरों से। टीसीएस में पुल बैक नतीजों के बाद, इसके अलावा इन्फोसिस निचले सुरों से पुल बैक शो कर रहा है। लेकिन जो गिरावट है वो है बैंकिंग में। आज एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा टूटा है, 0.25% की गिरावट हो चुकी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा स्टील, बीपीसीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली ज्यादा देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन ज्यादातर अभी तक डिक्लाइंस के फेवर में, जिसके कारण निफ्टी जो है वो 10 अंकों की गिरावट शो कर रहा है। स्मॉल कैप में एक्शन स्ट्रांग है, वो भी बता देते हैं आपको कहां पर। सोम डिस्टिलरीज बताया गया था आपको, एक इनका ब्रांड है ब्लैक फोर्ट, जो इन्होंने हाल फिलहाल में कर्नाटक में लॉन्च किया था। 30% उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहुंच चुका है। आपको सुबह 7:30 बजे बताया था कि स्टॉक में तेजी बन सकती है, क्योंकि पिछली बार जब खबर आई थी कि ब्लैक फोर्ट लॉन्च किया कर्नाटक में, तब ये 20% के ऊपर फ्रीज पे खड़ा था, और आज देखिए 17% की तगड़े रिटर्न्स दे चुका है। बहुत स्ट्रांगली पुल बैक। 7:30 बजे हम आपको रोज बरोज 20 ऐसे शेयर्स बताते हैं जहां पर कमाई का मौका काफी स्ट्रांग होता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। दूसरा शेयर जो बताया गया था 7:30 बजे फास्ट मनी में, वो है जेएचएस स्वैंगार्ड। बताया फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी की, और रिजल्ट से पहले एक्टिव होने के चांसेस थे। आज देखिए 12% के स्ट्रांग रिटर्न्स दे रहा है ये मार्केट पे। बाजार में एक फ्लैट कारोबार है, लेकिन जेएचएस स्वैंगार्ड दिन के उच्चतम स्तर पे 12% का रिटर्न।
गणेश हाउसिंग और रूबी मिल्स जैसे स्टॉक्स पे पुल बैक देखने को मिल रहा है। रूबी मिल्स अब 8% ऊपर है। कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। गणेश हाउसिंग एक और स्टॉक जहां पर निचले स्रोत से पुल बैक है, और इस हफ्ते तो वैसे भी जोरदार तेजी में ये स्टॉक। कुछ चुनिंदा रियल एस्टेट कंपनियां जो है उस हफ्ते काफी स्ट्रांगली परफॉर्मेंस दे रही हैं अभी भी। EIH होटल शेयर्स लिस्ट बहुत लंबी है। ताज जीवीके, EIH एसोसिएटेड, रॉयल ऑर्किड सभी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। बॉम्बे बर्मा एक और शेयर जहां पर अब तक के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है ये शेयर, लेकिन एक सेक्टर जो बस कर रहा है वो है पावर। चाहे आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से ले लें कंपनियां या फिर ट्रेडिशनल पावर कंपनियां जो हैं वो देख लें, अच्छी तेजी में है। आइनॉक्स विंड अब 4% ऊपर कामकाज कर रहा है। मेरे साथ आशीष केलकर साहब मौजूद है। आशीष जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो मार्केट्स पे अप्रोच बताएं सर आज के लिए। लेवल देखते हैं तो यहाँ से आगे जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा वो एकदम ठंडा माहौल में रहने की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। एक लेवल है जो कि 9070, जब तक इसके ऊपर है तो मैं मानता हूँ कि ये वोलेटिलिटी जारी रहेगी। अगर 9060 के नीचे हम निफ्टी को फिसलते हुए देखते हैं तो सीधा 9020 तक आने की संभावना है, तो क्लोज वॉच करना चाहिए। नई पोजीशन इंडेक्स में नहीं बनानी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना जरूरी होगा। चलिए वो स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं। पावर क्षेत्र की कंपनियों में एक्शन देखने को मिल रहा है। आपके रडार पर है कोई स्टॉक आज? टॉप गेनर्स तो पावर ग्रिड, टाटा पावर जैसी कंपनियां, एनटीपीसी में मूव 1% के आसपास का, और आइनॉक्स विंड स्मॉल कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक में अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अगर इन सब में से मैं देखता हूं तो टाटा पावर का जो स्टॉक है ये बहुत करेक्ट हो चुका है, और यहाँ से जिस तरह से उछाल आता हुआ नजर आ रहा है तो मैं मानता हूं कि ये पुलबैक जो है वो और ऊपर जा सकता है। करीबन 84.85 लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूं कि इसमें अभी क्षमता है कि ये करीबन 86.5-87 तक इसमें पुलबैक दिखाई देने की संभावना है। तो जिनके पास ये पोजीशन है वो पोजीशन होल्ड करें, नई लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह नहीं होगी क्योंकि ये पुलबैक रही होगी। कभी कभी गिरता स्टॉक पलट जाता है सर, इसका चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं। आइनॉक्स विंड का क्या तेजी बढ़ सकती है यहाँ से? आइनॉक्स विंड का अगर हम चार्ट देखते हैं तो डेफिनेटली अगर 194 से लेके ये स्टॉक 184 तक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नीचे फिसलता हुआ हमने देखा है, तो अभी फिलहाल अगर इस स्टॉक को देखते हैं तो 192 ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। 194 का एक स्मॉल रेजिस्टेंस है, इसको अगर क्रॉस करता है तो सीधा 199 के लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई देंगे। चलिए राइट, अब ये स्टॉक देख के बताएं। JHS स्वेंगार्ड वैल्यू तो है, रिटर्न मिल गया आज 12% के आसपास के। सुबह हमने बताया था ये स्टॉक तेज हो जाएगा 7:30 बजे के शो में फास्ट मनी जो हमने नया शो लॉन्च किया है। 12% रिटर्न है स्टॉक में, ये तेजी भी और पकड़ेगा क्या? रजत जी, इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो पिछले एक साल में इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम ज्यादा लंबे अवधि का चार्ट देखते हैं तो इसने करीबन इन द मंथ ऑफ अगस्त 2012 में एक हाई बनाया था जो कि करीबन 49 था, और हम अभी वहां उसके बाद वापस 49 कभी नहीं गया था, और हम आज 49 के एग्जैक्टली करीब है। तो मैं मानता हूं कि जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें। नई पोजीशन अगर किसी को स्टॉक में बनानी है तो 49 के ऊपर क्लोज मिलने दे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तब ये फ्रेश ब्रेकआउट माना जाएगा, और उस केस में इसका लक्ष्य 60-61 तक दिखाई देने की संभावना है। अच्छा, साथ ही साथ सोम डिस्टिलरीज पे क्या किया जाए? अच्छी खबर, रूल कर रही है स्टॉक को, 17% ऊपर हो चुका है। ये तेजी पोजिशनल बेसिस पे अगर किसी को होल्ड करना हो तो करे क्या, क्योंकि गिरता स्टॉक पलटा है आज? डेफिनेटली अगर सोम डिस्टिलरीज का अगर हम चार्ट देखते हैं रजत जी, तो इसको ना 120 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, और वहीं से ये स्टॉक ने पुल बैक देखा है। अभी फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीबन 141 के ऑड लेवल पे, और 143 तक ये टेस्ट कर चुका है। इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो इन द मंथ ऑफ नवंबर इसने एक हाई बनाया था जो कि वो था इन द मंथ ऑफ मार्च में इसने हाई बनाया था 151 का। तो 151 तक जाने की संभावना इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। नई पोजीशन नहीं बनानी होगी, जिनके पास है वो होल्ड करें। चलिए, एक इंपॉर्टेंट खबर है आज बैंकिंग सेक्टर के लिए भी और टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी। देखिए, RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने हाल फिलहाल में एक बयान में कहा था कि 5 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें बैंकिंग का जो स्ट्रेस है उन सेक्टर्स की वजह से 61% स्ट्रेस बैंकिंग का उन्हीं सेक्टर्स की वजह से है। और आज बात यह है कि RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है टेलीकॉम कंपनियों का कुल जो 4 लाख करोड़ का कर्ज है उसके लिए उस कर्ज की समीक्षा करने को कहा है, और अतिरिक्त प्रोविजनिंग यानी कि ज्यादा प्रोविजनिंग करने के लिए भी कहा है। इस पे बात करने के लिए राजन मैथ्यू साहब मेरे साथ से मौजूद हैं, DG CEO है के। राजन जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, ये तो रेड फ्लैग एक अलर्ट जारी कर दिया RBI ने एक तरीके से टेलीकॉम सेक्टर के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशो 1 से कम होने का मतलब क्या कंपनियों की दिक्कतें और हैं? क्या इंटरेस्ट की भरपाई भी नहीं कर पाएंगी कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां? Thank you. So first of all, this is what we have been now saying for several months, that because of the financial condition of the telecom sector,
other sectors are going to feel the pressure. The banking sector, and so this is why you have heard RBI, manufacturing sector that manufactures equipment for us, service sector. So all of these sectors will also feel the stress. And the first signs we are seeing is with the banking sector, because over 420,000 crores, that's 4.2 lakh crores of debt is outstanding both to the government and to the banks. And so the amount of interest, the amount of principal repayment is now very heavy on the industry, and the industry has been hit on the revenue side as well. So because of the hit on the revenue, the increasing cost, the ability of the companies to start repaying the debt is now becoming a question mark. And so this is why the RBI has now finally acknowledged what we have been saying for the last several months. सर, तो गलती किसकी माने यहाँ पर? कंपनियां, अब कंपटीशन बढ़ गया है तो ऑब्वियसली चैलेंजेस तो होंगे, टैरिफ वॉर तो छिड़ेगी ही छिड़ेगी, लेकिन अब गलती किसकी माने और कंपनियों के पास विकल्प क्या है? क्या कंसोलिडेशन मोड या फिर कुछ कॉस्ट कटिंग ड्राइव्स कंपनी की तरफ से देखने को मिल सकती है गोइंग फॉरवर्ड? So clearly, one of the outcomes is the fact that we have to start consolidating so that financial health and strength is maintained. That is clearly what is happening. That will continue. Also, please understand that 30 paisa of every rupee that is earned by the telecom companies goes back to the government. So we have to start looking at the government to say this burden of 30% from every rupee earned is not again sustainable in the current competitive environment of the industry. So therefore the government also has a responsibility to reduce the tax and levy burden on the industry so that money can be freed up to service the banks and bank payments and debt. अच्छा, टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा आसान करे, सरल करे, कम करे इस सेक्टर के लिए सरकार, तो आप समझते हैं कि बेहतर होगा। लेकिन सर, अभी कल टेलीकॉम मिनिस्टर साहब की यहाँ पर एक स्टेटमेंट से उन्होंने कहा कि कंपनियों के पास स्पेक्ट्रम पर्याप्त है, कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाने पे जोर देना होगा। हालांकि कॉल ड्रॉप रेट्स पिछले 3 महीनों में 60% घटे हैं, लेकिन फिर भी टेलीकॉम पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना बहुत जरूरी है। क्या आपके हिसाब से कंपनियों के पास अब इतना सरप्लस या फिर इतना कैश है कि वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च कर पाए? So again, the amount of infrastructure investment that is required in order to roll out 5G services, also to expand coverage of 4G, to address the issue of call drops, as you rightly pointed out, we are looking for 50,000 crore rupees just in investment in the network over the next 4 years. Now, if the revenue stream is hurt, if the cost structure is hurt, that money will not be available to the companies. And so ultimately, the consumer will start to feel and suffer the consequences of not having a world-class network available. This network is the basis on which many of the government's Digital India programs will rise. When you look at demonetization, when you look at e-commerce, e-health, e-governance, all of that depends on a healthy and robust network. That network cannot develop without those investments being made by these companies in that infrastructure. So that is very important. चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलर्ट तो जारी हो गया और कहीं ना कहीं दिक्कतें आप टेलीकॉम सेक्टर की बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि प्रोविजनिंग है बैंक्स जो हैं वो ज्यादा करेंगे इस सेक्टर के लिए। मेरे साथ ललिताभ श्रीवास्तव साहब, बैंकिंग एनालिस्ट शेरखान से में मौजूद हैं। ललिताभ जी, बहुत शुक्रिया। सर, आपके हिसाब से अब अगर एलोकेशन बढ़ जाता है, बैंकिंग एज ए स्ट्रेस फील कर रहा है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, प्रोविजनिंग बढ़ जाती है, तो इसका असर टेलीकॉम सेक्टर पे, बैंकिंग सेक्टर के फाइनेंशियल्स पे आप कैसे देखते हैं? क्या आप लोन्स कम जाएंगे टेलीकॉम सेक्टर को, ये समझें? डेफिनेटली जो इंक्रीमेंटल लोन्स होंगे वो तो बैंक्स टेलीकॉम सेक्टर को शायद बहुत सोच समझ करके ही एडवांस करेंगे। ओवरऑल देखिए तो टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट बोरोवर था अभी के टाइम पे। अराउंड 14% ऑफ द ओवरऑल डेट वाज टू टेलीकॉम सेक्टर। सो वो एक चैनल, वो एक एवेन्यू जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। So it will be a concern for both credit growth for banks as well as for funding of telecom sector as well. चलिए ललिताभ जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पे अपना रिएक्शन देने के लिए। तो दिक्कतें बढ़ेंगी टेलीकॉम सेक्टर की, जो लोन्स हैं आने वाले समय के लिए हो सकता है कि बैंक स्ट्रिक्टनेस बढ़ते हैं, प्रोविजनिंग अगर उनको ज्यादा करनी पड़ गई टेलीकॉम सेक्टर के लिए। तो दोनों ही सेक्टर्स, दोनों ही पॉकेट्स, टेलीकॉम और साथ साथ बैंकिंग आज अंडर परफॉर्मेंस शो